للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات مسلسل عیسائی کریمہ کے دائرے میں آپ کے سامنے معلومات پیش کیے جا رہے ہیں کہ ایمان ہی سب سے اہم مرحلہ ہے. انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور اگرچہ انسان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ لاکھ عمل کرتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کس بلبوتے کو عمل کرتا ہے؟ لیکن ظاہر میں ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. ایمان کے پہلے زینے کا نام کیا ہے؟ کیسے ہم ایمان کے پہلے زینے پر قدم رکھیں؟ تو حقیقت دیکھا جائے تو ایمان کے پہلے زینے کا نام اگرچہ فرش اعضا کہہ لیا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے کوئی چیز بھی حاصل کرنے کے لیے اس جگہ جانا پڑتا ہے جہاں پر اس جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا مرکز ہو. مثلا ایک انسان، ایک طالب علم اگرچہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ جو بھی سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ ایسے اسکول میں ایڈمیشن لے گا جہاں پر وہ سبجیکٹ وہ پڑھ سکے، ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ ہے. تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے ہوتا کیا ہے؟ کچھ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اور ضروری چیز یہ ہے کہ اس کالج میں ایڈمیشن لیا جاتا ہے. ایڈمیشن سب سے پہلا مرحلہ ہے. تو ذرا گرامی اگرچہ ایڈمیشن سب سے پہلا مرحلہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو اگرچہ ایمان کے حوالے سے ایڈمیشن چاہتے ہیں تو اس فرش اعضا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان ایڈمیشن کرا کے تو ایمان کا معاملہ ہے اور بہترین جگہ ہے یہ. یہیں سے انسان پہلے زینے پر قدم رکھتا ہے اور یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ فرش اعضا ہی کے ذریعے سے دینوں ایمان کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کو بیانات اس کے پیش کیے جاتے ہیں. لیکن سب کچھ کے باوجود آج ہم بچوں کو خاص طریقے سے بزرگان ہمارے بہتر جانتے ہیں، بچوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس فرش اعضا کے ذریعے سے کہ آخر فرش اعضا کی اتنی تاکید معصومین نے کیوں کی، یا محرم کا چاند آتے ہی فرش اعضا تاکید کے ساتھ ہر جگہ بچھا دی جاتی ہے، آخر کیوں؟ اگرچہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ دیکھیں تو ہر معصوم نے اتنی تاکید کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے واجب کی منظر ہو، اور معصوم نے بھی یہ سب عمل کیا ہے. لیکن ذرا گرامی میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جو یہ فرش اعضا بچھا کے جو ہمارا مجلسوں کا طریقہ آج ہے اس میں یہ ہے کہ بعض نظریہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرش اعضا بچھا دیجئے، مصائب کربلا بیان کر دیجئے اور پھر اس کے بعد آنسو بہا لیجئے، حصہ تقسیم کر لیجئے، حق ادا ہو گیا. کچھ نظریے تو یہ ہیں کہ فرش اعضا بچھانے کا مطلب اور مجلس کا مطلب یہ ہے کہ فرش اعضا بچھا کے مصائب کربلا بیان کر کے دو آنسو دو قطرے بہا لیجئے. یقیناً ان سب کی قیمت ہے، یقیناً ہم سمجھانا چاہتے ہیں بچوں کو، یقیناً ان سب چیزوں کی قیمت ہے. فرش اعضا بچھائیے گا اس کی قیمت ہے، آنسو بہائیے گا اس کی قیمت، واقعات کربلا کا بیان کیجیے گا اس کی قیمت. لیکن کیا یہی ہدف ہے مجلس کا جس کی تاکید معصومین نے اتنی کی ہے؟ اگرچہ آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ہر دور میں جیسا دور رہا ہے اسی اعتبار سے عزاداری کی شکل رہی ہے.
जैसा दौर रहा है उसी एतबार से उस दौर में आज़ादारी की शक्ल रही है। एक दौर वो गुजरा, ताकीद तो की इमाम ने, क्यों ताकीद की वो मैं आज बताना चाहता हूँ। मुमकिन है कि कुछ ताखिर भी हो जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। बुनियादी चीज है। एक दौर वो था कि जिस दौर में बाकायदा जिक्र सैयदुश्शुहदा के ऊपर और जिक्र अहले बैत के ऊपर पाबंदी लगाई गई। जैसे इस दौर में है, ये भी एक आजमाइश का दौर है। आप आम तरीके से मामबाड़ों में नहीं कर सकते, घरों में कर रहे हैं। आया ना दौर भाई, जो गुजरा हुआ कल का दौर था वैसा तो ये दौर है नहीं। एक पाबंदी लगी ना हमारे ऊपर। इसी तरीके से ऐसे दौर गुजरे हैं शुरू में कि पाबंदियां थीं, लोग फर्श अदा नहीं बिछा सकते थे, घरों में मातम का एहतमाम नहीं कर सकते थे, मजलिसें नहीं कर सकते थे। ऐसा दौर था और बाकायदा पहरे लगे हुए थे। तो उस दौर में भी ऐसा नहीं कि आज़ादारी नहीं हुई, बस शक्ल बदल गई। उस दौर में शक्ल बदल गई कि ऐसे आज़ादारी नहीं। अब यह है कि मोमिनीन एक दूसरे से उन अय्याम में मिले, गले मिले और गिरिया कर लें। इमाम हुसैन का कि मुसीबत सोच के गिरिया कर लें, यही आज़ादारी थी उस दौर की। तो तफसील में बहुत नहीं जाना चाहता। तो जैसा दौर रहा वैसे आज़ादारी की शक्ल रही। इस दौर में ज़्यादातर जो हमारा और आपका नज़रिया है वो यही है कि बस फर्श अदा बिछा दिए, मसाइब करबला बयान कर दीजिए, 2 आंसू बहा लीजिए, तबरुक लीजिए, जाइए। अज़ान करामी ये हदफ ही नहीं है, ये हदफ ही नहीं है। ईरान में जो हौज़े इल्मिया कुम, ये तमाम दुनिया में सबसे बड़ा मरकज़ है, इल्मी मरकज़, जहाँ उलमा को पढ़ाया जाता है, इल्म हासिल करते हैं लोग, मर्जा बनते हैं। तो जो जिसने हौज़े इल्मिया कुम की बुनियाद रखी थी ईरान में, शेख अब्दुल करीम हायरी, कितना अहम पैगाम दिया उन्होंने। शेख अब्दुल करीम हायरी, अच्छा हमारे यहाँ दस्तूर क्या, हमारे दस्तूर यह है कि हम बहुत मनाते हैं मुहर्रम तो 2.25 महीना, उसमें भी अक्सर सवालात होते हैं कि ये 2.25 महीना क्यों मनाया जाता है। अशरा जब ख़त्म हो जाता है, शहादत आशूर के दिन हो जाती है तो 2.25 महीने अक्सर सवाल होते हैं। बहरहाल उसका जवाब ये वाक़या जो मैं बयान कर रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है। शेख अब्दुल करीम हायरी हौज़े इल्मिया कुम के, जिसको कहते हैं मुअस्सिस, बुनियाद रखने वाले, आज जितने उलमा व मराजे निकल रहे हैं सब उसी हौज़े से निकल रहे हैं। तो उनका ये दस्तूर था कि जब वो दर्स देने आते थे तो मासूम कुम के हरम में वो दर्स देते थे और उनके दर्स का वक्त था 8 बजे, सुबह 8 बजे वो दर्स खारिज देते थे। और जो उलमा पढ़ने वाले होते थे वो पौने 8 बजे तक वो सब इकट्ठा हो जाते थे। और जब 10 मिनट बाकी रह जाता था 8 बजने में तो एक तालिब इल्म, एक आलिम खड़ा होता था और 10 मिनट मसाइब करबला बयान करता था। 10 मिनट मसाइब करबला बयान करता, ये उनका तरीका था। तो किसी ने कहा कि आगा ये रोज मसाइब करबला, हम तो 2.25 महीना मसाइब करबला बयान करते हैं ना। जब उनसे कहा गया कि ये रोज साल का साल, यही दस्तूर था उनका, तो जब सवाल करने वाले सवाल किया कि ये साल का साल आप करते हैं, रोज का रोज करते हैं, ऐसा क्यों? कहा कि हम ये करके बताना चाहते हैं कि अगर जो हुसैन ने कुर्बानी न दी होती तो ये दर्स होता ही नहीं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। ने अगर कुर्बानी न दी होती तो ये जो हम दर्स कह रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, ये दर्स का वजूद न होता। तो ज़ाहिर ग्रामी, आखिर फर्श अदा की मजलिस हुसैन की इतनी ताकीद इमाम हुसैन यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्यों की? उसकी वजह क्या है? ये ताबूत, ये दुलजना, ये अलम, ये सब बेहतरीन चीज़ है, तबरुकात हैं, मगर ये ताकीद क्यों की कि इस तरीके से आप लोग अदादारी करें? सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। एक रवायत पढ़ता हूं और आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस फर्श अदा का, इस मजलिस हुसैन का मकसद क्या है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ आंसुबाना मकसद नहीं है, इसका हकीकत में मकसद क्या है। हमारे अब यहां से गौर से सुनिएगा, हमारे छठे इमाम जाफर सादिक बिहारुल अनवार किताब में एक हदीस बयान करते हैं, सुनिएगा गौर से। उस
میں حدیث بیان کرتے ہیں اور دو خاندانوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ مجلس کی تاکید کیوں اتنی کی؟ جہاں بہت سے مسئلے ہیں، مسالے ہیں، وہاں پر سب سے اہم مسئلہ پوائنٹ یہ ہے. دو خاندانوں کا اس حدیث میں تذکرہ کیا ہے امام نے. ایک خاندان ابو سفیان اور دوسرا خاندان اہل بیت. چٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ دو خاندانوں میں شروع سے جھگڑا رہا ہے اور آج تک جھگڑا جاری ہے. کس میں؟ خاندان ابو سفیان اور خاندان اہل بیت. خود امام فرما رہے ہیں کہ یہ دو خاندانوں میں شروع سے جھگڑا رہا ہے اور آج تک جھگڑا جاری ہے. اچھا، جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ جھگڑا ہمیشہ کسی تیسری چیز پر ہوتا ہے. یہ جھگڑا آل محمد سے، اہل بیت سے اور ابو سفیان کے خاندان سے کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان کا خاندان تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا باطل ہے. اہل بیت یہ کہہ رہے تھے کہ خدا حق ہے. اہل بیت یہ کہہ رہے تھے کہ خدا حق ہے، اس کا دین حق ہے. ابو سفیان کا خاندان کہہ رہا تھا کہ خدا باطل ہے، اس کا دین باطل ہے. اسی کو لے کے خاندان ابو سفیان اور اہل بیت میں جھگڑا شروع ہوا اور جھگڑا یہاں تک پہنچا کہ جب ابو سفیان تھا تو پیغمبر سے جنگ ہوئی، جنگ احد، جنگ بدر، یہ سب ابو سفیان سے ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان کہتا تھا کہ خدا حق نہیں ہے، پیغمبر کہتے تھے کہ خدا حق ہے. ابو سفیان کہتا تھا کہ دین حق نہیں ہے، پیغمبر کہتے کہ یہ دین حق ہے. تو اس کو لے کے پہلی جنگ کس سے ہوئی؟ ابو سفیان اور پیغمبر سے. یہ سلسلہ آگے بڑھا، پیغمبر دنیا سے گئے. دوسری جنگ کس سے ہوئی؟ مولا علی سے اور ابو سفیان کے بیٹے معاویہ سے. میں تاریخ بتا رہا ہوں بچوں، یاد رکھنا اور اصل فرش ادا کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنا. دوسری جنگ کس سے ہوئی؟ کیونکہ امام نے فرمایا کہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. دوسری جنگ کس سے ہوئی؟ معاویہ ابن ابی سفیان ادھر کون؟ مولا کائنات. جنگ صفین تفصیلات موجود ہیں، اس کے لیے پورا اشارہ چاہیے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. یہ جنگ ہوئی مولا کائنات سے اور معاویہ سے. مولا کائنات دنیا سے گئے. تیسری جنگ کس سے ہوئی؟ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان. ہے نا، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں اور اس کو شرما کے مت سنیے گا، پوری تاریخ موجود ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد. تیسری جنگ کس سے ہوئی؟ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے بیٹے یزید سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام سے ہوئی. یہ یہاں تک سلسلہ ہمارے چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ یہاں تک جنگ ہوئی. اب اس کے بعد رکے نہیں امام، کہا کہ اب یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک جنگ باقی ہے. آخری جنگ کون ہوئی؟ کربلا کی جنگ. کس سے ہوئی؟ امام حسین سے ہوئی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَالسُّفْيَانِ يُقَاتِلُ الْقَائِمُ. ایک جنگ باقی ہے جو حسین کا وارث پردہ غیب میں ہے، اس سے جنگ ہوگی سفیانی سے. اب یہ سفیانی کون ہے؟ یہی ابو سفیان کے خاندان ہی کا فرد ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سلسلہ کہاں سے چلا؟ یعنی امام زمانہ سے جو جنگ ہوگی وہ بھی ابو سفیان ہی کی اولاد ہوگی. اب ہم اور آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ دو جنگوں کے درمیان. توجہ چاہتا ہوں عزیزو. فیروز بھائی سنیے، یہ ہے فرش ادا کی عظمت اور مقصد حسین اور مجلس حسین کا مقصد. اب ہماری زندگی جو گزر رہی ہے کہاں گزر رہی ہے؟ دو جنگوں کے درمیان. ایک جنگ کربلا ہو چکی، دوسری جنگ باقی ہے. دو جنگوں کے درمیان ہماری زندگی گزر رہی ہے. جب دو جنگوں کے درمیان زندگی گزر رہی ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم یہ جو جنگ ہونے والی ہے امام سے اور ابو سفیانی سے،
اس کے درمیان ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہونے کی تیاری کریں. ہم اس جنگ میں شامل ہونے کی تیاری کریں. یہ تیاری کہاں ہوگی؟ یہ تیاری کہاں ہوگی؟ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا فرش ادا، یقیناً فرش ادا سے ہوگی، مگر فرش ادا سے کیوں ہوگی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ تیاری بھائی کون، ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ اور دعا بھی کرتا مولا اپنے فوج میں ہم کو شامل کیجئے گا ظہور کے بعد، سب دعا کرتے ہیں، مگر تیاری یہ ہوگی کہاں؟ کہاں ہوگی تیاری؟ فرش ادا پہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مولا حسین نے فرمایا کہ جیسے اصحاب ہم کو ملے، نہ ہمارے نانا کو ملے، نہ ہمارے بابا کو ملے، نہ ہمارے بھائی حسن کو ملے. اتنے صحابی گزرے مگر حسین کو کیسے صحابی ملے؟ خود کہہ دیا کہ نانا کے پاس بھی ایسے صحابی نہیں تھے، بابا کے پاس بھی ایسے صحابی نہیں تھے، بھائی کے پاس بھی ایسے صحابی دوست نہیں تھے جیسے ہمارے. یعنی بے مثال اصحاب امام حسین کے تھے. اب اگرچہ وہی صفت حدیثوں میں ہے کہ وہی صفت جو اصحاب حسینی کے ہیں وہی صفت اصحاب امام زمانہ کے ہوں گے. تو جانے گرامی اصل دیکھا جائے تو یہ فرش ادا تربیت گاہ ہے، اس لیے کہ امام کے اصحاب یہی سے آئیں گے، یہی سے اٹھیں گے. امام کے اصحاب وہ ہوں گے جو عزادار ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اب سمجھ میں آیا کہ یہ تربیت گاہ ہے. تربیت گاہ ہے، ہم کو ویسا بنانا ہے جیسا حسین کے اصحاب تھے، تب تو ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں. اصل ہدف فرش ادا اور مجلس حسین یہی ہے. لیکن آپ لوگ کیا تمنا کرتے ہیں ذاکر سے؟ وہ مولانا خیبر پڑھیے، وہ خندق پڑھیے، واہ واہ ہو، نعرہ حیدری ہو. نہیں، انصاران حسینی کے صفات پڑھو تاکہ وہ اپنے اندر سن کے صفات پیدا کرے اور اس لشکر کے قابل ہو جائے وہ جو فوج بننے والی ہے اور جنگ ہونے والی. لیکن ہماری تمنا تو یہی ہوتی کہ بس واہ واہ ہو. نہیں، اس فرش ادا کا اصل مقصد بچوں یہی ہے کہ ہم اپنے اندر اصحاب حسینی کے صفات پیدا کریں. بالکل جب اصحاب حسینی کے بارے میں سنیے گا، ان کے جہاد کو سنیے گا تو خود بخود آنسو آ جائیں گے. بنی ہاشم کی مصیبتوں کو سنیے گا، خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. وہ پتھر دل ہوں گے جو نہیں روئیں گے، خود بخود آنکھوں میں آنسو. تو یہ تربیت گاہ ہے. اصل فرش ادا کیا ہے؟ اس کا مقصد جو امام نے اتنی تاکید کی کہ مجلس حسین کرو. اور یہ بھی امام نے فرمایا کہ دیکھو مصائب کربلا ضرور پڑھنا. ہر بیٹھک مجلس نہیں ہوتی، وہی مجلس ہوتی ہے جہاں پر مصائب کربلا ہو. یہ بھی سن لیجیے، ہر بیٹھک مجلس نہیں ہوتی، جہاں وہی مجلس ہوتی ہے جہاں مصائب کربلا بیان کیا جائے. تو جب مصائب کربلا بیان کریں گے، واقعہ کربلا بیان کریں گے تو ان اصحاب حسینی کے ایمان کا اندازہ ہوگا کہ کس منزل ایمان کے اوپر وہ تھے. اصل مقصد یہ ہے بچوں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہاں کے تیاری کرنی ہے. اگرچہ کہ صحابی کے، اگرچہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے واقعات سن رہے ہیں اور تمنا یہ ہے کہ وقت کے امام کے فوج میں ہمارا شمولیت ہو ہماری، تو پھر ہم کو اسی فرش ادا سے تیاری کرنی پڑے گی. اس لیے کہ یہ فرش ادا بہت کچھ دے دیتا ہے. یہ فرش ادا بہت کچھ دے دیتا ہے. لوگ یہ فرش ادا اتنی بابرکت جگہ ہے کہ جہاں پر تربیت ہو. برا سے برا انسان بھی اس فرش ادا کی عظمت کو اگرچہ سمجھ کے آتا ہے تو حسین اس کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں. حسین ابن علی اس کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں. ہم اس فرش ادا کو کبھی کھلواڑ سمجھ کے نہ، اس فرش ادا پہ برا سے برا انسان بس آ جائے اور حسین ابن علی سے متمسک ہو جائے تو حسین خود ہدایت کرتے ہیں. آج میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک ادادار کا، اور آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ایک ادادار کا دل کیسا ہوتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ اس فرش ادا پہ
न जाने कितने बुरे लोग आके अच्छे बन के गए, और अगर चाहे अच्छे लोग आके और अच्छे बन जाएं तो वही लोग होंगे जो इमाम के लश्कर में शामिल हो। ज़हन में रखिएगा कि इस फर्शदा की बड़ी बरकत है, बुरे से बुरे लोग हिदायत याफ्ता हो जाते हैं। ईरान में तेहरान जो है ये राजधानी है, और तेहरान में एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। गौर से सुनिएगा अजीज़ों, एक अज़ादार कैसा होता है, बुरा से बुरा हो, लेकिन अगरचे उसके ऊपर निगाह करम इमाम हुसैन पड़ जाए तो मिनटों में और लम्हों में उसकी हिदायत हो जाती है। तेहरान में एक बहुत बड़ा मोहल्ला है जिसका नाम है दौलताबाद, और उस मोहल्ले में यानी इतना बड़ा मोहल्ला है कि जिसमें 5000 शियों की आबादी है, 5000 शियों की आबादी है, और वहाँ जो अंजुमन है वो सबसे बड़ी अंजुमन है, दूसरे मोहल्लों से भी मिला के 5000 नौजवानों का की अंजुमन है, इतनी बड़ी अंजुमन। वही दौलताबाद में एक इमाम बारगाह जहाँ पर मजलिसें होती हैं तो एक वक्त में 12,000 आदमी, ये तफसीलात में इसलिए बता रहा हूँ कि 5000 लोगों के अंजुमन मजलिस होने की जगह 12,000 अफराद एक जगह बैठ जाते हैं। वही दौलताबाद का एक रहने वाला है जिसका नाम कासिम है। कासिम फारसी में किताब है कासिम जिगरची, यानी गोश्त दुकान थी उसकी, गोश्त की दुकान थी, वो गोश्त बेचा करता था, लेकिन कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो वो न करता रहा हो, कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो न करता रहा हो। न जाने उसके ऊपर कितने कत्ल के केस थे, लेकिन ग्रामी सारी बुराइयां होने के बावजूद साल भर तक वो बुराई करता था। लोग देख के डर के भागते थे, उसके पास से गुजरना जो है वो मुनासिब नहीं समझते थे, इतना बुरा आदमी था कासिम जिगरची। लेकिन उसका दस्तूर ये था कि जब बकरीद का महीना आखिर में पहुंचता था, यानी 28 बकरीद की 28 होती थी, यानी मुहर्रम के एक दिन पहले, उसका दस्तूर ये था कि हर साल मुहर्रम के एक दिन पहले तमाम बुराइयों को छोड़ के नहा धो के वो मस्जिद जाता था और नमाज पढ़ता था और अज़ादारी करता था। नहा धो के वो मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ के दुआ करता था, परवरदिगार अब मैं तेरी बारगाह में 12 दिन के लिए आया हूँ, तौबा कर रहा हूँ, 12 दिन तक कोई गुनाह नहीं मैं करूंगा। इतना बुरा आदमी, लेकिन आ रहा है एक दिन पहले नहा धुल के और मस्जिद में नमाज पढ़ता है, दुआ करता है कि परवरदिगार अब हम 12 दिन तक तौबा कर रहे हैं, 12 दिन तक हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई बुराई नहीं करेंगे। क्यों? दलील देता था, दलील से बात करते, इसलिए कि यह हुसैन का महीना है, यह हुसैन का महीना है, यह हुसैन की तारीखें आ गई, ये उसका दस्तूर था। मैंने आपको बताया कि ये दस्तूर था। अच्छा, उसी मोहल्ले में उसी अंजुमन का एक बहुत बड़ा जुलूस था जो एक 7 को उठता था, 7 मुहर्रम को, और एक 9 मुहर्रम को। गौर से सुनिएगा अजीजों, पैगाम है इसमें। एक 7 मुहर्रम को बहुत बड़ा जुलूस उठता था और एक 9 मुहर्रम को, और उस जुलूस में कम से कम 12-14 हजार लोग होते थे, और उसमें एक अलम उठता था। अच्छा, जो हमारे यहाँ अलम का अलम होता है वो जैसे वो एक छड़ है या बांस है, लंबा होता है, वो बहुत वजनी नहीं होता, एक बच्चा भी नौजवान भी उठा लेता है। लेकिन ईरान में ऐसे अलम नहीं होते, ईरान में चौड़ा अलम होता है, चौड़ा, और सिर्फ उसमें पंजे लगे रहते हैं। मतलब इस तरीके से है, अब ये पंजे लगे हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो एक आदमी उठाता नहीं, उसका वजन भी कम से कम 2-2, 3-3 कुंटल होता है, उसका एक आदमी नहीं उठा सकता। लेकिन ईरान में चूंकि ताकतवर है, एक आदमी उसको उठाता है, इतना वजनी अलम होता है। ये जो जुलूस उठते थे 7 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को, वो जो अलम उठाता था, क्योंकि ये जिस्म से भी कासिम जिगरची जिस्म से भी वो मतलब वजनी था, ताकतवर था, तो यही उठाता था। 7 मुहर्रम वाला भी अलम यही उठाता था और 9 मुहर्रम वाला भी अलम यही उठाता था। लेकिन दाना ग्रामी, एक वक्त आया कि जहां पर उस जुलूस में 12,000, 15,000 का मजमा होता था, आहिस्ता आहिस्ता वो मजमा कम होने लगा।
देखिए कभी कितना भी इंसान कोई बुरा हो, कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि कोई ना कोई उसमें अच्छाई होती है, और वो कब उभर के सामने आ जाए किसी को इल्म नहीं। अब क्या हुआ, 7 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को वलन उठता था, लेकिन यही उठाता था कासिम जिगरची ही उसको उठाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उस जुलूस में मजमा कम होने लगा, जहां 12-15 हजार का मजमा होता था वहां पर 2000 का मजमा हो गया। अब जो अंजुमन के साथ कमेटी के लोग थे वो परेशान हो गए कि आखिर ये मजमा कम क्यों हो रहा है। तो और उस मोहल्ले के लोग नौजवान दूसरे मोहल्लों में मजलिसों में जाने लगे, परेशान, पूरी अंजुमन परेशान कि जहां 12-14 हजार का मजमा होता था वहां 2000 का 1000 का मजमा रह गया, आखिर वजह क्या है। तो कुछ जवानों को पकड़ पकड़ के जो दूसरे मोहल्ले में जाने लोग, उन लोगों से पूछा कि आखिर क्या वजह है, तुम लोग क्यों नहीं आते मजलिस में, क्यों नहीं आते जुलूस में। कहा कि क्या करेंगे ऐसे जुलूस में जाके। कहा क्या हुआ। कहा कि ऐसे जुलूस में हम लोग जाके क्या करेंगे या जिसमें अलम उठाने वाला कासिम जैसा बदकिरदार हो, कासिम जैसा बदकिरदार जिस जुलूस में अलम उठाए, हम उसमें जाके क्या करेंगे। अब जिससे पूछ रहे हैं लोग कमेटी वाले तो यही जवाब दे रहे हैं। धीरे धीरे मजमा कम हो गया, 1000 का मजमा हो गया, 14-15 हजार के मजमे से 1000 का मजमा हो गया। अब कमेटी वाले परेशान, एक साल जब आया तो कमेटी वाले परेशान, कहा कि क्या किया जाए, यही कासिम है जो सबब बन रहा है कि लोग नहीं आ रहे हैं मजलिसों में और जुलूस में। तो आपस में कमेटी ने तय किया कि कासिम के घर हम लोग खुद चलते हैं। तो एक दिन पहले, वो मुहर्रम के एक दिन पहले हर साल वो तैयार होता था और उसका यही दस्तूर था। लिहाजा कमेटी वालों ने तय किया कि हम लोग अब 29 को नहीं चलेंगे बल्कि 28 ही को चलेंगे, जो उसके बुरे काम करने के दिन है। कमेटी वाले तैयार हुआ। अच्छा, कमेटी वाले ये भी जानते थे कि सारी बुराइयां कासिम में है, मगर एक अच्छाई है कि बुजुर्गों का एहतराम करता है, बुजुर्गों का एहतराम करता है। लिहाजा एक बुजुर्गों को साथ ले लिया, इसलिए कि सिर्फ वो बुजुर्गों का एहतराम करता था, वरना हमेशा से दूसरों को गाली गलौजी से बात करता था। हमने बताया कि उसके सामने से लोग गुजरते नहीं थे। कमेटी वाले साथ इकट्ठा हुए और इस बुजुर्ग को साथ लिया और लेके कासिम के घर पहुंचे। कब? 28 तारीख। अभी इसके शरारत करने के दिन है, एक दिन बाद ये भी शरारत है। पहुंचे, दक्कुलबाग किया, आया दरवाजे पे कासिम, देखा कि कुछ लोग हैं और उनका खैरियत का कि बस तुमसे कुछ बात करना आया हूँ। फौरन दरवाज़ा खोला और अंदर ले गया, हुजरे में बिठाया, चाय वाय पेश की, पानी में पिलाया। उसके बाद पूछा कि हाँ फरमाइए, आप लोग क्यों आए हैं, आप लोग क्यों आए हैं। कहा कि कासिम ये बताओ कि एक अज़ादार की तमन्ना क्या होती है। वो बुजुर्ग बोला कि एक अज़ादार की तमन्ना क्या होती है। तो कासिम ने कहा कि एक अज़ादार की तमन्ना ये होती है कि मजलिसें खूब हों, ममसन की मजलिस खूब हो। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि क्या मतलब। कहा कि इमाम हुसैन अजीम है तो अजीम मजलिसें हों। फिर बुजुर्ग ने कहा कि अजीम का क्या मतलब। कहा कि इमाम हुसैन की मजलिसों में नियाज बनाया जाए, खाना बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो कहा कि अगरचे खाना बनाया जाए, नियाज बनाया जाए और उसके बाद भी मजमा ना आए तो क्या किया जाए। तो कासिम ने कहा कि फिर सबब तलाश किया जाए कि मजमा क्यों नहीं आ रहा, सबब तलाश किया जाए कि मजमा क्यों नहीं आ रहा। कहा कि सबब अगरचे पता चल जाए कि एक आदमी है जिसकी वजह से मजमा नहीं आ रहा है, फिर क्या किया जाए। तो कासिम ने कहा कि उसको मजमे से निकाल देना चाहिए ताकि सारा मजमा आए। जैसे ही कहा तो उसको मजमे से निकाल देना चाहिए जिसकी वजह से मजमा नहीं आ रहा है, उसको निकाल दो। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि जिस जुलूस और मजलिस में 12-14 हजार का मजमा होता था उसमें 1000 का मजमा हो गया। का सबब। कहा कि तूने अपने जबान ही से कह दिया, एक आदमी के आने की वजह से सारा मजमा कट गया। तो उस कासिम ने कहा, उस बुजुर्ग कहना क्या चाहते हैं आप। कहा कि कासिम तुम्हारी वजह से सारा मजमा कट गया, कोई नहीं आ रहा।
लिहाजा हम लोग इल्तिमास कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि तुम इस साल मजलिस में ना आना, जुलूस में ना आना, ताकि मजमा आए। ये बात कासिम ने सुना, दिल पे लगी उसके ये बात, और सीधे वहाँ से उठा और अपने हुजरे में चला गया। हुजरे में चला गया, ये लोग भी चले आए, और जब चले आए तो बाकायदा मजलिसें हो रही हैं, मजमा हो रहा है। ये लोग भी खुश हैं कमेटी वाले कि चलो वो कासिम नहीं आ रहा, उसकी वजह से कम हमारा मजमा आ रहा है। लेकिन जाने ग्रामी पहली तारीख, अब ये क्या कर रहा है, कासिम क्या कर रहा है, इसलिए कि इसको तो रोक दिया गया इमाम बारगाह में आने से। दिल पर इसने बात ली अजीजों, पहली मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया, मजलिसें हर तरफ शुरू हो गई। मजलिस जाने का वक्त हुआ तो ये चूँकि जाके कमरे में बैठ गया। मजलिस जाने का वक्त हुआ तो बीवी बच्चों ने कहा कि चलो कासिम हम जा रहे हैं मजलिस, तुम भी चलो। कहा कि चलो तुम लोग, हम आते हैं। उसके बाद उसके घर में एक बेसमेंट था, तहखाना था। ऊपर गया कमरे में, जितने काले कपड़े उसके पास मौजूद थे, इसको कहते हैं किस तरीके से इंसान बदलता है इस मुशाहदा की बरकत से। जितने बीवी बच्चे तो चले गए, ये ऊपर गया कमरे में और जितने काले कपड़े उसके बच्चों के टुकड़े टुकड़ी जितने काले थे सबको इकट्ठा किया और बेसमेंट में ले आया। हर जगह जो है काला काला कपड़ा लगा दिया। लगाने के बाद जो कुछ उसको मरसिए के बंदियात थे, नौहे के बंदियात थे, मुसीबत के बंदियात थे, पढ़ता जाता था और रोता जाता था। यही कहता जाता था कि मौला, इन लोगों ने अपने इमाम बारगाह से हमको निकाल दिया और हमने ये काला पर्दा लगा के इमाम बारगाह बना दिया। मौला, हमने आपको अपने यहाँ बुला लिया है। ए मौला, अब तो यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, यहाँ से कोई नहीं। यही कह के वो रोता जाता था और उसी बेसमेंट में है, रो रहा है कह के मौला, यहाँ से तो कोई हमको नहीं निकालेगा। ये इसका अमल जारी है। बच्चे हर रोज चले जाते हैं, ये कह देता है कि तुम लोग चलो हमारे। पहली तारीख गुजरी, दूसरी तारीख गुजरी, तीसरी तारीख गुजरी, चौथी तारीख गुजरी, पांचवी तारीख जब आई है, पांचवी तारीख जब आई है तो ये जो कमेटी के अफराद थे, मजमा तो हुआ, ये जो कमेटी के अफराद थे उसमें से एक शख्स दूसरे शख्स के पास आया और आने के बाद दख्खुलबाब किया उसके घर, तो वो रोता हुआ निकला और ये दख्खुलबाब करके ये भी खुद रो रहा था। तो उसने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो इसने कहा कि मैंने इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा मैंने इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा है। कहा बताओ क्या देखा है? कहा कि नहीं, सब इकट्ठा होंगे कमेटी के लोग तब बताएंगे। जाके सबको लिया और एक जगह जब सब आए, हाँ बताओ क्या देखा? तो एक ने बयान किया कि हमने ख्वाब में देखा है कि इमाम हुसैन सल्लल्लाहु आए हैं और फरमा रहे हैं कि तुमको क्या हक बनता है कि तुमने कासिम को रोक दिया हमारे हुसैनिये में से। जाके सब माजरत करो उससे, जाके सब माफी मांगो। दूसरे ने कहा कि हमने भी यही ख्वाब देखा। तीसरे ने कहा हमने भी यही ख्वाब देखा है। चौथे ने कहा हमने भी यही ख्वाब देखा है। पांचवें, छठे और सातवें ने कहा हमने भी यही ख्वाब देखा है कि हुसैन आए हैं और आके कह रहे हैं कि तुमको क्या हक बनता है कि हमारे इमाम बारगाह से कासिम को जो है मना कर दिया है। अरे तुम जाके माजरत करो, कासिम को लेके आओ। सब इकट्ठा हुए। इमाम ने आके कहा है, इमाम का दिल गमगीन है कि कासिम नहीं आ रहा है हुसैनिया में। मुतवज्जे हुए और कासिम के घर पहुंचे, दख्खुलबाब किया तो छोटा बच्चा निकला और जैसे ही वो छोटा बच्चा निकला है तो इन सातों आदमी क्योंकि परेशान थे, पूछा कि ये बताओ तुम्हारा बाबा कहाँ है? कहा कि बाबा मेरा बेसमेंट में है और जल्दी खबर लो कहीं वो दुनिया से रुखसत न हो जाए। अब जो जैसे ही गए हैं ये सातों अफराद कमेटी के, क्या देखते हैं कि दीवार से सर अपना टकरा रहा है और सर लहू लहान हो गया है। एक मतलब ये आगे बढ़ते हैं, ये सातों अफराद पूछते हैं कि कासिम क्या हुआ है? कासिम क्या हुआ है? हम तुमको लेने आए हैं। कासिम क्या हुआ है? एक मतलब कासिम रोते हुए सर पटकते हुए कहता है, मैं इतना बुरा आदमी हूँ मगर मौला हुसैन हमें लेने आए थे। मौला हुसैन आके कह रहे थे कि कासिम मुझे माफ कर दो, हुसैनिये में जाओ, अब तुमको कोई नहीं रोकेगा। हुसैनिये में जाओ, तुमको अब कोई नहीं रोकेगा।
मैं यही सोच सोच के रो रहा हूँ कि इतना गुनहगार और मेरा मौला माफी मांग रहा है मुझसे और ये कह रहा है कि हुसैनिये में जाओ और ये कासिम और कोई अलम नहीं उठाएगा, तुम्ही को मेरे भैया अब्बास का अलम उठाना है, तुम्ही को मेरे भैया अब्बास का अलम उठाना है। कासिम दिल छोटा न करो, हमने तुमको माफ कर दिया, मगर ये कासिम सिर्फ इतना बता दो कि तुम मेरे भैया अब्बास का अलम उठाते हो, इन्हीं हाथों से उठाते हो। अब सोचो कि जिन हाथों से तुम अलम उठाते हो, क्या उससे गुनाह करते हुए अच्छा लगता है? जिन आंखों से हमारे ऊपर आंसू बहाते हो, क्या उन आंखों से गुनाह करते हुए तुमको अच्छा लगता है? जिन पांव से तुम मजलिस चल के जाते हो, क्या उस पांव के जरिए से गुनाह करते हुए अच्छा लगता है? मौला माफ कर दीजिए, वैसे गुनाह नहीं होती। अज़ान गिरामी, वो लोग आए, दावत दे के चले गए। अब छठी की तारीख आई, ये कासिम गया। 7वीं जब आई है तो कासिम गया है, लोग इंतजार कर रहे थे कासिम आ जाए और कासिम ही अलम उठाएगा। अज़ान गिरामी, 7वीं मुहर्रम को कासिम ने अलम उठाया, वही मजमा, वही भीड़ वहाँ। 9 मुहर्रम को कासिम ने अलम उठाया, लेकिन जब आशूर का दिन आया है, आशूर का दिन, बस आखिरी बात, आशूर का दिन आया है तो अज़ान गिरामी, आशूर का दिन जब आया तो यही कासिम है जो सुबह आशूर के बाद ये दुआ करता है कि मौला आपने यहाँ तक हमको ये ले आए, मौला बस परवरदिगार हम तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि हमको भी आशूर ही के दिन मौत दे दे जिस दिन मेरा मौला शहीद हुआ। जिस दिन मेरा मौला शहीद हुआ है उसी दिन हमको मौत दे दे, इसलिए कि मौला ही सीधे रास्ते पे लाए। ज़ान गिरामी, तारीख में मिलता है, वाक़या मिलता है कि ये दुआ किया और जैसे असर आशूर का वक्त करीब हुआ है तो उसकी रूह कफ़स मंसूर से परवास कर। असर आशूर के बाद जो है जुलूस इमाम हुसैन निकलता था, लोगों ने दफन कफन का इंतज़ाम किया, उसके जनाजे को तैयार किया और इमाम हुसैन का जो असर के वक्त जुलूस निकला, उसी के जुलूस के पीछे पीछे कासिम का जनाजा चल रहा। कैसा मुहिब था ये, कासिम का जनाजा चल रहा है और चाहने वाले कासिम के जनाजे पे ये कह के फूल बरसा रहे हैं कि कासिम तेरा क्या कहना, जिस दिन हुसैन शहीद हुए उसी दिन तुझे भी मौत आई, क्या कहना। ये कह के हर आदमी कासिम के जनाजे पे फूल डाल रहा है, हर आदमी कासिम के जनाजे पे फूल बरसा रहा है। मैं कहूँगा, एक जुमला कहना चाहता हूँ, ए कासिम तू बड़ा खुशकिस्मत है कि तेरा जनाजा उठा तो असर आशूर के वक्त उठा, और जब जनाजा चला है तो चाहने वाले फूल की बारिशें कर रहे थे, मगर जरा करबला